I am Vandana and I welcome you all to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. So friends, आज का मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है and it's going to be a little long video, so stay tuned till the end of this video. And also I have a beautiful view for you to see today through my video. So this is a live view you are going to see along with this live video. So friends, in this today's video I'm going to talk about a topic. इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ लोगों ने बोला है वीडियो बनाने को, and I think it's interesting also, and it will be interesting for all of you who are watching this video and who will watch in future. It's a very it will be a helpful video for all those people who want to do this in future. And as well as friends, ये वीडियो मैंने ऐसे नहीं बनाया है, just ऐसे ही नहीं बनाया है. I know कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, and also I know कि मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ. This is all because मैंने यहाँ पे अपना जो आज का मेरा वीडियो है, आज का वीडियो का टॉपिक है how you can start your own business in UAE or in Dubai, or how you can start your own pharmacy if you want to have your own pharmacy set up in future. Then how you can have your own pharmacy in future, as well as not only pharmacy, इसके अलावा भी ये वीडियो और तरह के जॉब्स के लिए भी हेल्पफुल है, like for any restaurant or any kind of retail shop. So मेरे इतना बोलने से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है. So आज का वीडियो का टॉपिक है how you can start your any business in Dubai, a retail shop in Dubai, or how can you open your pharmacy in Dubai. इसकी क्या क्या requirements हैं, what are the things, what are the factors that should be kept in mind before going for a business in UAE, and how you can do that. So this is a video based on my personal experience, because I owned a pharmacy in Sharjah which I had opened in the year 2017 in the month of July, I guess. And I think from August we have started running, the business has started running in the month of August. So I had my pharmacy in Sharjah near Rola. Rola is an area actually, it's a place in Sharjah. Sharjah is just a neighboring emirate to Dubai. Like जैसे हमारा दुबई का बॉर्डर खत्म होता है from one side, शारजा का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है. So friends, when you want to start, okay, before that अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so please guys subscribe to my channel. If you are new to my channel, one more thing I want to say, कि if you are new to my channel and you are watching this video for the first time, so let me tell you that I have made so many other videos related to pharmacy, pharmacist job and pharmaceutical jobs, as well as what are the other pharmaceutical sectors here in UAE and Dubai in which you can come here and work here. So उनके ऊपर मेरे और भी बहुत सारे videos हैं. I have made a playlist, so you can just go through my channel playlist and watch all those videos, and those videos will really be helpful for you people to know about the pharmaceutical field in UAE much more and more better, in a more better way. And also how you can clear your DHA licensing exam, as well as there are exam questions that have already come in the past years, past months, so that will also be helpful, so that you come to know how you have to prepare and what are all those things that you have to keep in mind. So everything is there, just go through my playlist and you will come to know. So let's begin this video. Guys, if you have not liked my video, then please give a thumbs up, like my video, share my video with your colleagues, recommend my video to your colleagues, your friends who are in the pharmaceutical sector, and also please subscribe to my channel. So वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा होने वाला है, as I'm going to share each and everything about the topic I already discussed. So how you can open your own pharmacy in Dubai, in Sharjah, or in UAE, in any emirate in UAE. So friends, इसके लिए पहला चीज जो आपको करना रहता है, the main important thing is the location. First thing is what is the best location. It is very important to run a business to see what the location is. So location is plays one of the key roles
in running a successful business here in UAE. Because if you have opened your business in a place where you cannot where there is not much scope for that particular business. See, every business has like if you want to open a cafeteria or a restaurant, then you have to see which kind of area should be that where I can open my business and where it will run good, so that I'm not at loss. So the same way we have to see the pharmacy also, like what is the area where we can open the pharmacy. And so for this you have to see what are how many hospitals are nearby, how many medical centers are nearby, as well as how many more pharmacies are nearby. Because if there are so many other pharmacies running nearby your own pharmacy, तो भी आपका नया business है, it will not boom fast, it will not be, you know, initially you will have to struggle a lot, because there are already pharmacies there which are running from a long time. They already have their customers, they already have their own people who go to them, so it will take you some time to establish at that place. But nevertheless, you don't have to lose your hope, because if there are more medical centers, if there are more doctors, then you can make your you can make your scope in that area as well, because you will have to meet the doctors, you will have to meet the medical center, and you will have to tell them to come to your to send the customers, patients to your pharmacies. Everyone usually do that, even I used to do that, so as the owner of my pharmacy. So we have to do that if we want our business to run successfully. So guys, location matters a lot, the first factor, because locality is very important. Residential area, it should be a residential area, because you know, pharmacist, most of the customers for the pharmacy, although everyone needs medicine for some or the other reason, but a particular but family people need it more because of kids and everyone. So we have to see if it's a good residential area, if there are good hospitals, medical centers nearby, clinics nearby. So it is really helpful to run the business successfully in that particular area. Second thing, guys, sponsor. Actually this should be the first thing, but no problem. Sponsor. Here in UAE, यहाँ पे एक रूल है. वो रूल क्या है कि आपको एक लोकल स्पॉन्सर को अपने साथ में रखना होता है. All the businesses that are running here, whether a small business or a big business or a middle business, सारे businesses में एक sponsor होता है. Sponsorship यहाँ पे बहुत important है. विदाउट उसके आप कोई business open नहीं कर सकते. So आपका sponsor जो आपके साथ में होगा वो कोई local बंदा होगा. Anyone who is a local Emirati, he will be your sponsor, he will be your partner. And जो हमारा sponsor होता है friends, वो 51% शेयर, लाइक 100% शेयर है हमारी फार्मेसीज के. सो 100% शेयर में से 51% शेयर वो लोकल स्पॉन्सर जो है वो ओन करेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोस 51% शेयर मीन्स द 51% प्रॉफिट. Profit will be completely yours. You are the owner, you are running the pharmacy, you have spent all the money in your pharmacy, so that the profit is yours, the loss is yours. The sponsor has nothing to do with that, so you don't have to worry by listening कि 51% shares अगर sponsor के होंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा या हमारे पास क्या होगा. So nothing like that. You don't have to worry about that at all. उसका रीज़न ये है कि 51% स्पॉन्सर यहाँ का रूल है होना, तो वो रूल सबको फॉलो करना पड़ता है. चाहे कोई भी बिजनेस ओनर हो, सबके बिजनेस में एक स्पॉन्सर होता है. और बाकी के जो फिर 49% शेयर हैं, अगर आप सिंगल ओनर हो अपने बिजनेस के तो वो 49% शेयर पूरा आपका हो जाता है. और अगर आपके दो पार्टनर्स हो आप, तो 25% एक का हो गया और 24% एक का हो गया, एंड 51% आपके स्पॉन्सर का हो गया. सो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. ओके, स्पॉन्सर आपके बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाएगा. हाँ, कहीं पे लगा सकता है, डिपेंड्स ऑन. अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप चाहते हैं कि स्पॉन्सर भी उसमें पार्टनर प्रॉफिट लॉस के पार्टनरशिप में आए, तो यू कैन डू दैट. डिपेंड्स ऑन कि स्पॉन्सर उस चीज़ के लिए आपका अग्री करता है कि नहीं करता है. इफ इट डज नॉट एग्री फॉर दैट, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू गो ऑन योर ओन. बट ऐसा भी यहाँ पे बहुत कम होता है. Only some big businesses, the sponsors have here what we say, some their own shares also in money share is also there.
in the business, so profit and loss share also goes to them. But most of the businesses they are just the sponsors of 51% shareholders and they don't take any profit and loss. तो उनको क्या मिलता है, वो आपके संग स्पॉन्सरशिप में है तो फिर उनको क्या मिलता है, यू हैव टू गिव देम सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, वो आप उनके संग इनिशियली डिस्कस करते हो व्हाट अमाउंट उनको आपको देना है. दैट्स नॉट वेरी बिग, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 ऑनवर्ड्स. सो डिपेंड्स ऑन आपका और आपके स्पॉन्सर का कितने में डील होता है. आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आपके स्पॉन्सर के साथ और उतना अमाउंट आपको हर ईयर उसको देना होगा अपने स्पॉन्सर को. और उनका सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, दे आर हियर स्पॉन्सर इन सो मेनी अदर बिजनेसेस ऑल्सो, सो दे हैव स्पॉन्सरशिप इन सो मेनी अदर बिजनेसेस एज वेल. सो दिस इज अबाउट द स्पॉन्सर थिंग विच इज मैंडेटरी, विच इज इम्पॉर्टेंट. और अगर आपका स्पॉन्सर बहुत अच्छा है देन तो आपको फ्यूचर में भी बहुत कई जगह पे हेल्प करता है. बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है. तो सो मेनी टाइम्स यू नो स्पॉन्सर भी हमारी हेल्प करते हैं एंड दे टेल अस, दे रिकमेंड अस, तो उसमें हमें हेल्प मिलती है. और स्पॉन्सरशिप यहाँ पे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो उसमें स्पॉन्सर को भी राइट मिल जाता है. स्पॉन्सर का एक्चुअली आपसे ज़्यादा राइट होता है, वो आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और इस तरह के उसमें आपको हेल्प करते हैं. कंपनी को अगर लिक्विडेट होना होता है एट लास्ट, समटाइम्स यू नो ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाते हैं, यू कैन नॉट रन योर बिजनेस एंड योर पार्टनर इज नॉट गुड एंड यू वांट टू लिक्विडेट योर कंपनी. सो इन दैट केस स्पॉन्सर आपको हेल्प करते हैं. कई बार अगर आप अपने लेवल पे उस काम को नहीं कर सकते हैं तो स्पॉन्सर कम्स इन बिटवीन एंड ही हेल्प्स यू. ओके, सो इसलिए भी स्पॉन्सरशिप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. तो इसके कई सारे रीजंस है स्पॉन्सरशिप के ऑफ अ लोकल इमराती पर्सन. उसके बाद गाइज रेंट, द थर्ड थिंग आई टॉक अबाउट इज द रेंट. क्योंकि कुछ पॉश एरियाज हैं लाइक दुबई में डाउनटाउन एरिया, जुमेरा एरिया, दीज ऑल एरियाज, यहाँ पे रेंट बहुत हाई है. लाइक छोटी सी शॉप भी अगर हम लोग ओन करेंगे तो इट्स मोर देन लैक्स ऑफ रेंट इज देयर. तो डिपेंड करता है हम किस तरह की एरिया में अपनी शॉप खोलना चाहते हैं. ठीक है, सो वो डिपेंड करता है और उसके हिसाब से हमारा रेंट भी डिपेंड करता है. रेंट लाइक दुबई में बहुत ज़्यादा रेंट है, शारजा में थोड़ा कम है, अजमान में थोड़ा उससे और कम है. तो डिपेंड्स ऑन विच एमिरेट, बिकॉज वी नो दुबई इज़ अ फेमस प्लेस, दुबई इज़ अ गुड बिजनेस प्लेस, इट्स अ बिजनेस हब ऑफ द होल UAE. सो यहाँ पे रेंट थोड़ा ज़्यादा है, बट देर आर ऑल्सो सम एरियाज वेयर रेंट इज़ नॉट दैट वेरी हाई. सो उसकी भी इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे ऐसा है कि लोकेलिटी इज़ नॉट दैट वेरी गुड बट रेंट इज़ लेस. रेंट इज़ नॉट दैट मच बट लोकेलिटी इज़ गुड एंड पीपल आर रनिंग देयर वेरी गुड सक्सेसफुल बिजनेस हियर. तो ऐसा सब कुछ भी है. सो डिपेंड्स ऑन, थोड़ा सर्वे करना पड़ता है, लोकेशन का सर्वे, मार्केट का सर्वे, एरिया का सर्वे बिफोर ओपनिंग एनी बिजनेस हियर इन UAE. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वो करते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल है. अगर आप वो नहीं करते हैं, ऐसे ही बिजनेस खोल देते हैं, ऐसे ही अपना पैसा लगा देते हैं, तो यू डोंट नो वेदर इट विल बी अ फ्रूटफुल बिजनेस फॉर यू. वो अच्छा रन करेगा कि नहीं करेगा, यू नोबडी कैन गारंटी यू, इवन यू कैन नॉट गारंटी योरसेल्फ. तो ये चीज़ थी अबाउट द रेंट. Okay, after that comes guys the trade license. So another important thing is the trade license. तो हम लोगों को ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ता है. कोई भी बिजनेस यहाँ पे रन होता है, कोई भी चीज़, एनी स्मॉल बिजनेस, अ सिंगल स्मॉल शॉप और एनीथिंग, सबका एक ट्रेड लाइसेंस होता है. वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हमें बना के नहीं देती, हमें वहाँ से बनाना पड़ता है, स्पेशली फ्रॉम द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ दैट एमिरेट. हम जहाँ पे अपना फार्मेसी शॉप खोलना चाह रहे हैं एंड in that emirate you will make your trade license. The trade license mostly like I had a shop in Sharjah, so my trade license was completely in Arabic. Actually I don't even know what is written in my trade license. I used to ask ye kya likha hai, ye kya likha hai. Even my name was written in Arabic and everything was written in Arabic. So only my like pharmacy name was Arabic and English, rest everything was in Arabic. तो आपको ट्रेड लाइसेंस नंबर मिलता है जो कि सब जगह पर रजिस्टर होता है एंड उसमें सबसे पहले स्पॉन्सर का, क्योंकि जितने % शेयर हैं उस हिसाब से उसमें आपके नेम्स
होते हैं तो 51% शेयर आपके स्पॉन्सर के हैं तो 50 सबसे पहले उनका नाम होगा, उसके बाद फिर आपका नाम होगा, आपके पार्टनर्स हैं तो उनका नाम होगा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर्स, कितने परसेंटेज शेयर्स हैं उसके हिसाब से आपका उसमें नाम, ट्रेड लाइसेंस में आपका नाम होगा। और ट्रेड लाइसेंस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे हमें अपनी फार्मेसी में हमेशा रखना पड़ता है, हमेशा लाइक यू हैव टू स्टिक इट इन योर वॉल, इन योर मेन वॉल, बिकॉज देयर इज अ चेकिंग बाय म्यूनिसिपैलिटी एंड सम अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स who come in between and check that your because it has expiry and a issue date, so like before it get expired you have to renew it every year। तो इसलिए आपको, इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज आती हैं, दे कम एंड दे सी दैट इट इज नॉट एक्सपायर्ड, इट्स स्टिल रनिंग, क्योंकि आप एक्सपायर्ड उसको अपनी शॉप में ऐसे रख नहीं सकते हैं। यू गेट अ वैलिडिटी ऑफ 1 month, in 1 month if it get expired then you get a validity of 1 month, and in that 1 month you have to then renew your trade license. So, and it is mandatory to put it in your shop, you cannot just keep it in your documents, you have to stick it somewhere or you have to frame it and keep it in your shop. It is one of the mandatory requirements. Then guys एक और चीज़ है, वो है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइसेंस। तो ये भी हमारे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से बनता है और इसमें भी सारी डिटेल्स होती हैं और आपका कमर्शियल नंबर होता है, बाकी डिटेल्स होती हैं, ये इंग्लिश अरेबिक दोनों में होता है पेपर, और इन सब में आप लोगों के सबके साइन होते हैं, ठीक है, आपके स्पॉन्सर के एंड ऑल दोज। So this chamber license is also very important, and this also you have to hang it in your pharmacy, and also there is a renewal date for this. Every year you have to renew this license as well. और ये जो भी लाइसेंस की मैं बात करूँगी, चाहे वो कोई भी पेपर हो, कोई भी, it's not free, you have to pay some fees for that to the government authority, and after that only they will make that license for you। और ऑल्सो देर इज़ अ रिन्यूअल फीस, एवरी ईयर उसकी कुछ रिन्यूअल फीस होती है, वो भी आपको पे करनी होती है। तो कोई भी लाइसेंस है दैट ऑल यू हैव टू पे द फीस फॉर दैट, एंड रिन्यूअल टाइम में भी आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी और उसको फिर 1 साल के लिए रिन्यू करना होगा। सो आई स्पोक अबाउट द ट्रेड लाइसेंस, देन आई स्पोक अबाउट द चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइसेंस। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सिविल डिफेंस थिंग। तो आपको अपनी शॉप में, चाहे कोई भी शॉप हो, फार्मेसी की रिटेल शॉप हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, कैफेटेरिया हो, ग्रोसरी हो, सुपरमार्केट हो, कुछ भी हो, कोई मोबाइल का शॉप हो, एनीथिंग, यू नीड टू हैव सिविल डिफेंस सर्टिफिकेट एज वेल। सिविल डिफेंस ये आपके फायर फाइटिंग रिलेटेड थिंग्स से इसमें डील करते हैं। सो दे विल असेंबल सम smoke detectors, some alarms, fire alarms and all those other things in your pharmacy, in your retail shops। और उनको भी हर साल उनसे फिर आपने एक सर्टिफिकेट, they will install, they will certify कि yes everything is okay, everything is installed, and after that they will give you a certificate। That certificate is also very important। तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेना है सिविल डिफेंस से, और वो सारी चीज़ें आपको अपनी शॉप में इंस्टॉल करनी होती हैं। And then after that when you have done this all things, then after that you know there is if you are opening a pharmacy, let me talk about the pharmacy only just now from now on। तो अगर आप फार्मेसी खोल रहे हैं अपनी, तो आपको इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से like from the department, licensing department say somebody will come to your pharmacy and they will see the pharmacy, okay, and they will do it okay कि हाँ भाई सब कुछ सही है, okay, they have done this all the things, so वो भी उस चीज़ को okay करते हैं, and then you proceed after that। अगर उन लोगों ने okay नहीं किया है तो आप अपनी फार्मेसी ओपन नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक जैसे कि हम लोग, सपोज मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया की बात कर लूँ, तो हम लोग वहाँ पे तो ये सारी कुछ हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम ऐसी ही शॉप खोल देते हैं अपनी, हमें कहीं पे कुछ ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ पे है, अथॉरिटी से आते हैं, वो लोग चेक करते हैं, सब कुछ ओके करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर। देन नेक्स्ट थिंग हियर आई विल टॉक अबाउट इज लाइक आपको अब आप आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं इससे आगे।
तो आगे की प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे तो वी कैन हायर अ फार्मासिस्ट, ओके, we can hire assistant pharmacist, we can hire a trainee pharmacist, जो हमारी requirement, it depends on our requirement, how many people we want to keep in our pharmacy, how big is your pharmacy, but usually like if it is a new pharmacy तो हम ज़्यादा लोगों को नहीं रखना चाहते हैं because we are still not making money and we don't know if the business will run in profit or will go in loss, and also it takes a certain amount of money for that, तो इसलिए हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं. तो we have to hire but 2 pharmacists, क्योंकि 2 शिफ्ट में तो काम होता ही होता है. अब फार्मेसी का टाइमिंग यहाँ पे मॉर्निंग 8 o'clock से नाइट 12 o'clock या नाइट 2 o'clock तक रहता है if you are not running a 24-hour pharmacy. So depending on the area, this depends on the area and you have to take a special permission from the municipality कि आप अपनी फार्मेसी को से till 12 o'clock permission, normal permission is granted by the municipality. But if you want to run it till 2 o'clock, from morning 8 o'clock till 2 o'clock, then you have to take a special permission letter from the municipality कि हम लोग 2 बजे तक अपनी फार्मेसी को ओपन करना चाहते हैं. So that letter you should have in your pharmacy, and then you can open your pharmacy. So one person cannot work from morning 8 to 12 or morning 8 to 2 o'clock. So at least 2 pharmacists तो आपके पास होने चाहिए. But apart from that, you can also have assistant pharmacist to assist him, or you can keep a trainee pharmacist. So like it depends on जैसी आपकी requirement है और जितना आपके पास बजट है, आप उस हिसाब से अपने पास अपनी फार्मेसी में कैंडिडेट्स रख सकते हैं. देन ऑफ कोर्स एक क्लीनर भी आपको हायर करना होगा टू मेंटेन द क्लीनलीनेस इन द फार्मेसी, बिकॉज फार्मेसी की क्लीनलीनेस, नीटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फार्मेसी बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल फ्लाई भी फार्मेसी में नहीं होनी चाहिए. ऑल दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट हियर. सो एक क्लीनर होना भी ज़रूरी है. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू वॉन्ट कि यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले अपनी वीडियोज़ में शेयर कर रखा है कि डिलीवरी सिस्टम इज़ देयर, लाइक पीपल ऑर्डर ऑन फोन एंड देन यू हैव अ डिलीवरी बॉय इन द pharmacy and then he can go and deliver the medicine to the customer and he can get from that money from the customer whatever money amount is written on the bill. So this process, this system is also here in UAE. So delivery boy depends on आपका बिजनेस कैसा रन कर रहा है, और अगर आप अच्छा रन करना चाहते हैं तो डिलीवरी बॉय आपके पास होना चाहिए, बिकॉज देन यू कैन टेल योर कस्टमर्स दैट वी हैव अ डिलीवरी बॉय and we can do home delivery to the medicines. So that's also like for it's a ease for the customers, you know. तो इससे भी आपके ज़्यादा कस्टमर्स बनते हैं. तो ये एक चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है और नोट करने वाली है. तो कुछ अमाउंट ऑफ फीस आपकी, कुछ सैलरी आपकी डिलीवरी बॉय को भी जाएगी. रखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, डिपेंड्स ऑन यू, इट्स नॉट मैंडेटरी थिंग. ओके, अपने बजट के हिसाब से आप रख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक क्लीनर को हायर कर सकते हैं. तो फार्मासिस्ट के लिए, असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए आपको एड पोस्ट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू राउंड एंड ऑल दैट, एंड यू कैन हायर अ फार्मासिस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड. यू वांट अ फीमेल फार्मासिस्ट, अ मेल फार्मासिस्ट. लोकेशन आपको देखनी होती है, लाइक अच्छा फार्मासिस्ट हायर करने के भी यू नो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हमारे, like in which kind of locality our pharmacy is there. So we have to see, is it a pharmacy where most of the people who are living nearby, the residents nearby are Arabic speaking. तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको एक Arabic pharmacist भी रखना पड़ेगा 2 में से किसी एक शिफ्ट में. और if you think the locality mostly consists of the Indians, the foreigners, the Pakistani people and all these people, तो आप फिर एक हिंदी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग फार्मासिस्ट को भी रखेंगे. बिकॉज जो कस्टमर, बिकॉज दिस इज वी हैव टू थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी वांट दैट कि कोई भी कस्टमर शुड नॉट गो बैक विदाउट एनीथिंग. या इफ ही हैज कम टू द फार्मेसी, ही वांट समथिंग, ही विल एक्सप्लेन अवर फार्मासिस्ट एंड अवर फार्मासिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड. So just in order to make it easy for the communication, we need to hire a pharmacist depending on our locality. This is very important because आपने एक फिलिपिनो को हायर कर लिया सपोज, और आपकी फार्मासिस्ट एरिया ऐसी है जहाँ पे मोस्टली पीपल आर स्पीकिंग हिंदी और उर्दू. ओके, मोस्टली इंडियन लोकेलिटी इज देयर मोस्टली. सो देन दिस विल बी अ लिटिल बिट नेगेटिव फॉर यू. But if you are having your pharmacy in an area like Jumeirah or some other areas
where you have like all kind of people coming, then you can keep pharmacist from Philippines also, because then he can deal with the people who speak in English. So it depends on, okay, so it all depends on the locality. We can hire the English speaking, the Hindi Urdu speaking, or the Arabic speaking pharmacist. Then guys, same goes for the assistant pharmacist as well, but pharmacist is main important because he will have to deal with everything that is related to the pharmacy. Then you have to look after the accounts of your pharmacy. So accounts, if you can handle yourself, very good. If you cannot handle yourself, then you can hire a part-time accountant for your business, and he can give some hours to your business and can look after your accounts. Or if you can yourself manage the account department also, then you can look after your account section as well. Then other important thing that I did not speak about is the interior of your pharmacy, because interior is very important. फार्मेसी अंदर से कैसी दिखेगी, कैसी होनी चाहिए, that is very important. Mostly यहाँ पे we have so many small shelves, you know, so many rows, so many columns in the pharmacy, and they all have glass shelves in the pharmacy, and it has to be maintained very neat, very clean, and we arrange all the medicines and all our products on those glass shelves here mostly. And they are like big height, like for like how long is your wall in the pharmacy, that is the height of those shelves also. We don't leave any space of the pharmacy empty. We fill it from the bottom till the top, or from the top till the bottom. पूरा फ्लोर होता है और पूरा स्पेस प्रोडक्ट्स के लिए होता है. As well as there are small racks in the pharmacy that we keep in like we arrange them in between the pharmacy in the area, because the full floor area is empty. So वहाँ पे हम उनको अरेंज कर सकते हैं, and you can keep other products in those areas. Or then we have to allot the areas, like where you will keep baby product, where you will keep the supplements, where you will keep the gym products, where you will keep the medicines, where you will keep the you know, OTC medicines, where you can keep the cough medicines. So depending on different category, you have to categorize and you have to think accordingly, and then accordingly you have to design your pharmacy interior. So ये सारा काम भी होता है, बहुत important है ये भी करना. And एक अच्छा सा software होना is very important, because software is one thing, because everything is computerized, A to Z, everything you have to do on the computer. So you should have a good software. There are many software here, many software companies here. You can look for any good software and contact that company and install that software in that company or company. Company usually comes, give you the demo, they install the software in your pharmacy, teaches you all the basics of that software. बट जो भी इंस्टॉलेशन का काम होता है, इंस्टॉलेशन इन द सेंस कि ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करके जाएंगे, बट जब हमने मेडिसिन को एंट्री करनी है, वो सब कुछ करना है, प्रोडक्ट्स की एंट्री करनी है, दिस इज वन थिंग दे डोंट हेल्प यू, दैट यू हैव टू डू एंटायरली ऑन योर ओन. तो ये सब कुछ काम आपने खुद करना होता है, ठीक है, सारी एंट्री एंड एवरीथिंग. जो फार्मासिस्ट है बेसिकली वो ये सारे काम करते हैं बिफोर वी ओपन द फार्मेसी. आप तो उनको हायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने फार्मासिस्ट हम लास्ट में हायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब से हमने लाइसेंस ले लिया है एंड वी हैव टू ओपन, तो हमें पहले से ही फार्मासिस्ट को भी हायर करना पड़ता है. मे बी आपको उसको 1 महीने की सैलरी भी फ्री देनी पड़े, मतलब काम ना हो फार्मेसी में, आपकी फार्मेसी रनिंग भी ना कर रही हो, लेकिन फार्मासिस्ट आपको हायर करना पड़ेगा. ये भी एक रूल है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग. तो उस ड्यूरेशन में वो आपकी फार्मेसी के बाकी काम कर लेगा, यू नो, लाइक मेडिसिन की एंट्री है, वो सब कुछ है, और ऑल दोज थिंग्स ही कैन हेल्प यू इन योर फार्मेसी सेटअप. देन एज आई सेड, दुबई में इंश्योरेंस मैंडेटरी है. इसके अलावा अदर एमिरेट्स में भी इंश्योरेंस है. सो आपको इंश्योरेंस कंपनीज को कांटेक्ट करना पड़ेगा. बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे हैं. जितना मैक्सिमम इंश्योरेंस आपकी फार्मेसी में आपके पास होगा उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि कस्टमर्स आएंगे मोस्टली सारे के, सपोज दुबई में है तब तो 100% लाइक 95% आपके पास इंश्योरेंस कस्टमर आएंगे. सो यू शुड हैव योर
इंश्योरेंस इन योर कंपनी, इन योर फार्मेसी। एंड जितना ज़्यादा इंश्योरेंस आपकी फार्मेसी में होगा उतना ज़्यादा आप कस्टमर्स आपके यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे। एंड यू कैन गिव देम मेडिसिन बिकॉज यू हैव दैट इंश्योरेंस, यू कैन क्लेम दोज मेडिसिन and you can dispense those medicines to your customers. So okay, insurance is also not free. You have to contact the insurance companies and initially you have to pay some amount to get that insurance in your pharmacy. So उसके लिए थोड़ा बहुत अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ता है। और सारी इंश्योरेंस कंपनी के अपने अलग अलग स्केल होता है, कोई कितने दिरहम मांगेगा, कोई कुछ दिरहम मांगेगा। सो that all is different insurance company has that different amount that they will charge you to have that insurance in your pharmacy. तो जितना ज़्यादा आपके पास इंश्योरेंस होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो इंश्योरेंस कंपनी में भी आपको बात करनी पड़ती है और इंश्योरेंस भी आपको अपनी कंपनी में रखना पड़ता है। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग, ओके ये भी पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, बट एनीवेज वी आर जस्ट टॉकिंग। सो सप्लायर्स, तो आपको सारे सप्लायर्स से बात करनी पड़ेगी, जितने भी सप्लायर्स हैं। बहुत सारे सप्लायर्स हैं यूएई में, डिपेंड करेगा आपको कौन कितना कुछ तो मैंडेटरी हैं, वो आपको कुछ मतलब उनके साथ आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा ना भी हो रहा हो, बट आपको उनकी मेडिसिन रखनी पड़ेंगी क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन को कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन को उनके पास होती हैं, उनके सप्लाई सिर्फ वही करते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, लाइक ऑप्शन है व्हेन इट गोज फॉर हेल्थ सप्लीमेंट्स और कुछ बेबी केयर प्रोडक्ट्स, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी चूज कर सकती हैं कोई आपको कितना बेनिफिट, किससे कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। बेनिफिट इन द सेंस कि लाइक हम आपको ये 10 प्रोडक्ट्स देंगे, इसके संग हम आपको ये 10 फ्री देंगे, तो दैट इज फ्रूटफुल फॉर यू, क्योंकि आप तो पूरे 20 सेल करोगे बट आपको 10 के संग 10 मिल रहा है। ओके, तो वो आपके लिए फायदे की डील है। तो इस तरह की डील्स की बात मैं कर रही हूँ आपसे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सप्लायर कितना कैसा दे रहा है। बट मेडिसिन के कुछ सप्लायर्स हैं, बड़े बड़े सप्लायर्स हैं यहाँ पे, लाइक सिटी फार्मेसी एक सप्लायर है, काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन से डील करते हैं। एक एनएमसी था बट दैट इज़ क्लोज नाउ, मे बी इट विल ओपन लेटर, वी डोंट नो, बट स्टिल जस्ट नाउ इट इज़ क्लोज। तो उनके पास भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी। ओके, मे बी अब वो मेडिसिन किसी तो वो सप्लायर था। एंड देन सिटी फार्मेसी एंड एमपीसी एक और बहुत बिग सप्लायर हैं। तो और भी कुछ और बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये सारे सप्लायर्स के साथ आप ज़्यादा नेगोशिएशन कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी आप दूसरी बात ये भी है कि सिंगल फार्मेसी होती है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी डील हम लोगों को नहीं मिलती है, क्योंकि उनमें उतना उनको फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे नो कि बिजनेस नया ओपन हो रहा है, अभी कितना चलेगा कैसा चलेगा वी डोंट नो। बट जैसे आपका बिजनेस रन करने लगता है, जैसे आप प्रॉफिट बनाने लगते हो, जैसे कि आप अच्छा रन करने लगते हो, आपका बिजनेस अच्छा पैसा कमाने लगता है, मेडिसिन फास्ट सेल आउट होती हैं और आपकी आप ऑर्डर आपका फास्ट जाता है टू द सप्लायर्स, तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई बिजनेस इज रनिंग गुड, द फार्मेसी इज मेकिंग अ गुड बिजनेस। तो फिर धीरे धीरे करके आपको थोड़े थोड़े अच्छे से ऑफर्स उन लोगों से मिलने लगते हैं। बट इनिशियली हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन तो हमें रखनी ही पड़ेंगी, इट्स अ फार्मेसी, तो मेडिसिन तो रखना कंपलसरी है। बट एज आई सेड कि सप्लीमेंट्स में और उनमें आप बात कर सकते हैं और उस केस में आप थोड़ा बहुत उनसे अपने लिए डील कर सकते हैं, कितने प्रोडक्ट्स में आपको कितना फ्री मिलेगा, क्या मिलेगा, इस तरह की डील आप उनसे आपस में कर सकते हैं जब आप मिलते हैं। बिकॉज व्हेनेवर यू कॉन्टेक्ट एनी सप्लायर, तो वो अपने मेडिकल रैप को या अपने सेल्स पर्सन को आपकी फार्मेसी में भेजते हैं। दे कम टू योर फार्मेसी, दे टॉक टू यू, they bring their product list, they give you your their product list to you, then you choose what all items you want to have in your pharmacy initially, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट होती है, आप सब कुछ तो ऑर्डर नहीं करोगे, because there is a budget also that you have for your pharmacy, for your products। तो आप बहुत बड़ा तो इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा आपका बजट कितना है
और इनिशियली आप कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। कुछ मैंने एक चीज़ और भी देखी है, ये शायद आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने कुछ फार्मेसीज़ में ऐसा देखा भी है जो कि यहाँ पे नहीं होती है, और उन लोगों से खुद से सुना भी है इनफैक्ट। सो दिस इज़ नॉट जस्ट माई ओन थॉट अबाउट दोज फार्मेसीज एंड दोज बिजनेस, बट इट्स ऑल्सो लाइक दे हैव ऑल्सो शेयर विद मी। तो उस बेस पे भी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ और आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि इनिशियली हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं मंगाने चाहिए। इनिशियली हमें बहुत बड़ा ऑर्डर सप्लायर्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सप्लायर्स, स्पेशली द बिग सप्लायर्स, वो आपको फर्स्ट जो भी आपका ऑर्डर होगा पेड होगा, वो आपको हार्डली इट्स जस्ट लाइक इन 100% 90% तो आपको पे करना पड़ेगा। सिर्फ 10% चांसेस हैं कि वो बोलें कि ओके, लाइक दे विल गिव यू सम टाइम, बट सम डोंट इवन गिव यू टाइम। दे विल से कि आपके पास मेडिसिन पहुंची है, डिलीवरी बॉय आपको डिलीवर करके गया है मेडिसिन, सेम टाइम आपके पास इनवॉइस होगा मेडिसिन का, आप इनवॉइस से मतलब उनको कैश दोगे, एंड दे वांट कैश बिकॉज दे विल नॉट गिव यू क्रेडिट, सो दे वांट कैश। और बट कुछ सप्लायर्स हैं जो स्मॉल सप्लायर्स होते हैं, जिन्होंने अभी ओपन किया है एंड जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस भी अच्छा रन करे, तो वो लोग फिर आपको क्रेडिट दे देते हैं। क्रेडिट लाइक 30 डेज क्रेडिट होता है, 60 डेज क्रेडिट होता है, 90 डेज क्रेडिट होता है, 120 डेज क्रेडिट होता है। दिस इज द मैक्सिमम क्रेडिट। तो इतना क्रेडिट रहता है, तो उस क्रेडिट के बेस पे उससे हमें हेल्प मिल जाती है एक्चुअली, क्योंकि देखिए हमें इतना सारा पैसा हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड देन जब हमारे पास मेडिसिन भी फार्मेसी में होना बहुत ज़रूरी है, एंड देन मेडिसिन कॉस्टली भी है, और सब जगह पे, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम लोगों का इन्वेस्ट हुआ है ओके एक फार्मेसी ओपन करने में। तो फिर हम इन लोगों से अगर हमें ये हेल्प मिल जाती है क्रेडिट वाली, कि दे गिव अस द क्रेडिट फॉर 1 मंथ का भी अगर हमें क्रेडिट टाइम मिल जाता है, हमारी फार्मेसी रन करना शुरू कर देती है, तो हमें हेल्प मिलती है उससे, और हम देन आफ्टर दैट वी कैन पे देम आफ्टर 1 मंथ। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन एनी सप्लायर गिव्स यू अ क्रेडिट। तो यूजुअली हम क्रेडिट हर सप्लायर से मांगते हैं, बट डिपेंड करता है सप्लायर टू सप्लायर, वो हमें क्रेडिट देना पसंद करते हैं कि या नहीं करते हैं। और बड़े सप्लायर्स हैं जैसे कि मैंने बोला, वो तो नहीं देंगे क्रेडिट आपको फर्स्ट टाइम में, बट मे बी आफ्टर 3-4 सप्लाईज वो आपको दे देंगे, और डिपेंड करता है हाउ फ्रीक्वेंट इज योर सप्लाई, योर ऑर्डर गोइंग टू देम ओके। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। देन गाइज मेडिसिन भी 2 तरह की होती हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल मेडिसिन है, एक कंट्रोल मेडिसिन होती हैं जो कि आप ऐसे ही सेल नहीं कर सकते हैं। तो उन कंट्रोल मेडिसिन, अगर आप चाहते हैं कंट्रोल मेडिसिन रखना अपनी फार्मेसी में, तो आपको जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेनी होती है, एंड देन यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर दोज मेडिसिन। रिकॉर्ड इन द सेंस कि उसका एक सेपरेट रजिस्टर बनता है, उसको सिर्फ फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस कर सकता है, और कोई फार्मासिस्ट उसके लिए इंचार्ज होता है। वो he will take care of single pill sold of that medicine. He has to make a record of the single pill in the register. He has to maintain like अगर आपने 20 सेल की है तो आप 20 वहाँ रजिस्टर में ऐड करोगे, आपने 15 सेल की है तो आप 15 ऐड करोगे। तो पिन पॉइंटेड इसका आपका वो रहता है कि कुछ भी इसमें अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल, हाउ मेनी हैज़ गॉन from the pharmacy, those many will be registered in the pharmacy, because जब आप इन्वेंट्री चेक करते हैं तो आप सिंगल पिल को स्पेशली ऑफ द कंट्रोल मेडिसिन काउंट करेंगे। एंड उस केस में फिर अगर ये नहीं है, नहीं सही बन रहा है, देन यू हैव टू पे अ फाइन फॉर दैट, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स फॉर दैट सो कई बार इस चीज़ में केस भी बन जाता है अगर ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रखी हैं तो इसलिए कंट्रोल मेडिसिन के संग थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ डील करना पड़ता है, थोड़ा सा सीरियसली डील करना पड़ता है। जो फार्मासिस्ट इंचार्ज इस चीज़ के लिए होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ की ओके। सो दिस इज़ द थिंग। सो कंट्रोल मेडिसिन की रखना कोई मैंडेटरी नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन कीप, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन कीप इट लेटर ऑन, इफ़ यू डोंट वांट टू कीप इट एट एनी टाइम नो प्रॉब्लम,
उसका कस्टमर अगर आपके पास ज़्यादा डिमांड आ रही है उस एरिया में कंट्रोल मेडिसिन की, तो देन इन फ्यूचर यू कैन गो फॉर दैट। बट इनिशियली अगर आप अपनी फार्मेसी खोल रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आप कंट्रोल मेडिसिन के लिए भी आपको उसी समय अप्लाई करना है, बिकॉज यू डोंट नो आपके कितने कस्टमर्स रहेंगे उस मेडिसिन के लिए। तो डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ दैट मेडिसिन इन योर पर्टिकुलर एरिया, उसके हिसाब से आप उस चीज़ को रख सकते हैं। सो गाइज दिस वाज अबाउट द मेडिसिन्स, ओके, एंड द अदर सप्लीमेंट्स। सारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग सप्लीमेंट सप्लायर्स होते हैं, उन सारे सप्लायर से आपको कांटेक्ट करना होता है। इनिशियली बजट बना के आपको रखना होगा, कितना बड़ा आपका बजट है, कितना अच्छा आपका बजट है, क्योंकि फार्मेसी बिजनेस, as I said, at every step you have to invest money, at every step money is needed, in every licensing procedure money is needed, तो हर जगह पे आपने पैसा देना है। तो you should have a good amount of money to open a pharmacy business in Dubai। उसके अलावा भी आप कोई भी बिजनेस आपने खोलना है तो पैसा तो चाहिए ही होता है, बट फार्मेसी में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। बट अगर हम वैसे भी बात करें तो जो भी बिग बिजनेस ओनर्स हैं आज यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, दे ऑल स्टार्टेड विद अ सिंगल फार्मेसी। एक छोटी फार्मेसी से ही उन लोगों ने शुरू किया है, वेदर इट्स अ स्टोरी ऑफ अ लाइफ हेल्थ केयर फार्मेसी ओनर और वेदर इट्स अ स्टोरी ऑफ अ एस्टर फार्मेसी ओनर, दे ऑल हैड स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल फार्मेसी and after that only they have come up with pharmacies more than 200 in the entire UAE, and even more than they have more than 100 pharmacies just even only in the Dubai area, like in 500 meter में ही एक ग्रुप की आपको दो फार्मेसी दिख जाएंगी। so because they know it is running here, so थोड़े like 300-400 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपको दूसरी फार्मेसी भी सेम ग्रुप की देखने को मिल जाएगी। so all these things, so like for starting every business we have to be strong enough from inside, अंदर से strong होना हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, because बाकी सब कुछ हो जाता है, बाकी चीज़ों की इतनी वो नहीं है, like इतना टेंशन की हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा strong होना पड़ता है एक बिजनेस खोलने से, स्टार्ट करने से पहले, because we are investing a huge amount of money in that। so there are other criterias also, like अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है इन हैंड, यू कैन गो फॉर द लोन फ्रॉम द बैंक हियर। बैंक यहाँ पे लोन्स दे देते हैं, और यहाँ पे लोन्स भी आपको लाइक अच्छे इंटरेस्ट में मिल जाता है। इंडिया का जैसे इंडिया में हमारा लाइक 12% 13% इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है, यहाँ पे उतना नहीं है, आई थिंक 3% 4% शायद 4% आई थिंक ऐसा 3-4% इतना ही इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे लोन लेते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग यू दिस दैट यू टेक अ लोन एंड यू गो फॉर योर ओन बिजनेस, बट इट्स लाइक वन ऑप्शन, इट्स वन ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट एंड दैट यू कैन गो फॉर। एंड और जो इम्पोर्टेंट थिंग इसमें है वो ये है कि कस्टमर सर्विस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। A good customer service by our pharmacist is very important, because when you are a owner of a single pharmacy, of an individual pharmacy, then it is very important to give good customer service to your customers, क्योंकि अगर उनको अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं मिलेगी तो मे बी वो लोग पहली बार आएंगे, उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे। तो यू नो आपको उनको बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी polite with them, you have to be very nice with them, greet them while they are going, greet them while they are coming, talk to them on some personal level also, because you know they are living nearby, so if you can talk, make some personal relationships also with them, so they will become your regular customer। because कुछ ऐसे old patients होते हैं जो कि इतनी costly medicines खाते हैं of cholesterol, BP, sugar and also monthly का आपका उनके संग even more than 1000 dirham का बिल रहता है। okay, this is there with so many customers here, so more than 1000 dirham का बिल वाला कस्टमर आपके पास है, तो आप चाहेंगे ऐसे कस्टमर को आप अपना रेगुलर कस्टमर बनाना, क्योंकि हर मंथ की 1000 dirham की सेल आपकी 1% से हो रही है, एंड दैट इज ओनली फॉर द फार्मेसी, ओनली फॉर द मेडिसिन। अगर उनकी फैमिली में और उनको अगर कुछ और मेडिसिन की ज़रूरत है, कुछ और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, उनके यहाँ बच्चे हैं, बेबी प्रोडक्ट चाहिए, उनके यहाँ
उनके बच्चे हैं, दे गो टू द जिम, उनको जिम प्रोडक्ट्स चाहिए, और दे आर ओल्ड, दे टेकिंग सप्लीमेंट इन फैमिली, दे आर टेकिंग सप्लीमेंट्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी वो आपके यहाँ से ही लेके जाएंगे इफ वंस दे बिकम योर परमानेंट कस्टमर एंड वंस यू बिकम you make your personal relationships with those customers. So this is very important. इसीलिए कस्टमर सर्विस मैंने अपनी आपको पहले वीडियोस जो इस टॉपिक पे बनाई है ओनली फॉर द फार्मासिस्ट, मैंने आपके संग शेयर किया है कि कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, बिकॉज ओनर नोज कि कस्टमर सर्विस की क्या वैल्यू है इन UAE, क्या वैल्यू है इन दुबई, एंड इसका क्या इम्पैक्ट है उनके बिजनेस के ऊपर। तो इसलिए एक अच्छी कस्टमर सर्विस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैंडेटरी है। तो जब हम फार्मासिस्ट चूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हमारे लिए भी ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि किस तरह के फार्मासिस्ट, किस तरह के बंदे को हम अपनी फार्मेसी के लिए चूज कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि देखो 2 बंदे हम कुल हायर करने जा रहे हैं, तो 2 बंदे हमें ऐसे चाहिए जो कि पूरा बिजनेस उनके हाथ में है। ओके, if you yourself is not a pharmacist and not a owner, if you are someone who has some other business or who is in some other job, you don't know anything about pharmacy, पर आप फार्मेसी खोलना चाह रहे हैं बिकॉज आप जानते हैं कि फार्मेसी इज़ अ वेरी गुड बिजनेस हियर इन UAE, बहुत अच्छा बिजनेस है ये, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है इन UAE। तो आप 2 बंदे रखेंगे, ठीक है, और आपको फार्मेसी के बारे में कुछ नहीं पता इतना ज़्यादा, मेडिसिन के बारे में, एंड यू आर नॉट इन द फार्मेसी, so you have to hire someone who can run the business very well, who is very polite, very good, and जिसको आपको इंटरव्यू लेते समय ही पता चल जाए कि हाँ ये बंदा मेरे बिजनेस को फ्रूटफुल बनाने लायक है। So choosing a pharmacist is also a very big responsibility for the owner of a single pharmacy if the owner itself is not a pharmacist or is not from a pharmacy background. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप खुद फार्मेसी वाले भी हैं, आप ओनर भी हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप मैक्सिमम टाइम फार्मेसी में रहेंगे और आप अपना शेड्यूल इस तरह से रखेंगे, आप स्प्लिट शिफ्ट में रहेंगे, क्योंकि आप भी रेगुलर नहीं कर सकते, तो मे बी आप कुछ आवर्स मॉर्निंग में करेंगे या आफ्टरनून में करेंगे या रश आवर्स में करेंगे, विच आर द रश आवर्स फॉर योर फार्मेसी आप देखेंगे, और आप उन आवर्स में अपनी फार्मेसी में रहेंगे कस्टमर्स के संग। फिर जब अपनी शॉप होती है तो आपको पता ही है कि हम खुद अच्छे रिलेशंस अपने कस्टमर के संग बनाना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ रूल फॉर द फार्मेसी दैट वी फॉलो, एंड दैट इज़ कि once a customer comes to your pharmacy, one thing, you should not go out of the pharmacy without buying anything, and secondly, once he has come to your pharmacy, you give your 100% to make him a customer of your pharmacy, that he has come once and he will come regularly to your pharmacy. So that all depends on our customer service and our, you know, how we are dealing in our first, you know, as it is said also, first impression is the last impression. सो इम्प्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स के ऊपर, बहुत ज़रूरी है। बिजनेस रन करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस रन करने के लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज अबाउट द कस्टमर सर्विस थिंग, द फार्मासिस्ट थिंग, और कुछ स्पेशल टिप्स मैंने आपके साथ ये शेयर की हैं बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम people who own their pharmacy, and I also know some persons like that, and once you own your own pharmacy, then आप कई लोगों को जानने लग जाते हो, कई लोग आपको जानने लग जाते हैं, and then you share your things also, you know, आपस में आप लोग उस चीज़ को शेयर भी करते हो, अपने प्रॉफिट लॉस थोड़ा बहुत, और अपना अप्स एंड डाउन्स एंड कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू ऑल शेयर ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो उससे भी आप लोगों को आपको पता चलता है। तो मैंने अपनी इस वीडियो में आपके संग वो सब कुछ भी थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश की है, सो दैट ये बेसिक चीज़ें आप लोगों के हेल्पफुल हो इन फ्यूचर में, अगर आप लोग चाहते हैं और सोच रहे हैं, या फिर जो लोग जिन लोगों ने मुझसे ये वीडियो बनाने को कही है, वो लोग अगर चाह रहे हैं अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप करना, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ये चीज़ें उनके लिए बहुत काम आएंगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को नोट करना। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड नाउ जस्ट रिकॉल ऑफ एवरीथिंग एट द एंड। सो गाइज, एक अच्छा स्पॉन्सर होना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस के रन करने में।
एंड देन एक लोकेशन का आपका बजट के हिसाब से आपको रेंट देखना होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन आपको लाइसेंसेस बनाने पड़ते हैं, ट्रेड लाइसेंस हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, उसके सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे रहते हैं जो आप करते करते आपको पता चल जाएगा। एंड देन छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट आपके आपके बिल्डिंग ओनर के साथ रहते हैं, तो वो सब जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड देन उसके अलावा फार्मासिस्ट का मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि किस तरह का फार्मासिस्ट हमें रखना चाहिए। लोकेलिटी के हिसाब से आपको अपना फार्मासिस्ट चूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपकी फार्मेसी के लिए, आपके बिजनेस के लिए। अगर आप सेम बिजनेस से नहीं हैं तो, अगर आप सेम बिजनेस से हैं तो भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आपके संग दूसरा फार्मासिस्ट होगा, जो आपका कलीग होगा, वो किस तरह का बंदा या बंदी होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं बहुत फैमिली वाला एरिया है, लेडीज़ भी फार्मेसी के अंदर काफ़ी आती हैं, तो फिर आप एक फ़ीमेल फार्मासिस्ट भी हायर कर सकते हैं मॉर्निंग की शिफ्ट में। और इसके अलावा भी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टिप बता देती हूँ जो मुझे आपसे भी बात करते करते ध्यान आ गई है, और वो ये है कि फ़ीमेल फार्मासिस्ट के संग आपका क्या फ़ायदा रहता है कि आपको उनके लिए वीज़ा फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। क्योंकि देखिए अगर आप अपने फार्मासिस्ट को हायर करते हैं, एक मेल फार्मासिस्ट को, तो मेल फार्मासिस्ट मोस्टली यहाँ पे विजिट वीज़ा में होगा या फिर कोई फैमिली पर्सन होगा, तो उसको आपको कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देना पड़ेगा और बाकी सारे बेनिफिट्स भी आपको देने पड़ेंगे। तो बाकी बेनिफिट्स तो आप एक फ़ीमेल फार्मासिस्ट को भी देंगे, जैसे कि एयर टिकट हो गया और उनका इंश्योरेंस कवरेज हो गया, और जो अदर सिक लीव्स और बाकी लीव्स हैं और बाकी जो भी बेनिफिशियल चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है, बेनिफिट से रिलेटेड चीज़, अब मैं दोबारा से वो चीज़ नहीं बात करना चाहती हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी आप एक फ़ीमेल फार्मासिस्ट को देंगे। बट क्या है कि उसके साथ में आपका एक जो ये वीज़ा का अमाउंट है ये बच जाएगा, क्योंकि वीज़ा का अमाउंट भी 7,000 8,000 के अराउंड पड़ता है। तो ये फीस आपकी फीमेल फार्मासिस्ट के संग बच जाती है, क्योंकि यू कैन आस्क फॉर समबडी हु इज़ इन द हस्बैंड वीज़ा और ऑन फादर्स वीज़ा, ओन वीज़ा, इस तरह से आप ऐड डाल सकते हैं। तो आपको लेडी फार्मासिस्ट के संग ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एक दूसरी चीज़ थी जो मैंने पहले शेयर नहीं करी थी, अभी बात करते करते मुझे ध्यान आ गया आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते हुए, तो मैंने आपके संग ये एक और नई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। सो this is also thing because we have to see initially ki where in what all point we can cut the money and we can save some money and use that money in something else, because we are the fresh business owners, we are just starting, we are just doing a setup of a business। तो कहाँ पे हम लोग कितना पैसा बचा सकते हैं, कहाँ पे हम लोग कितना उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट बिजनेस माइंड ऑल्सो। हम लोग बिजनेसमैन पहले से नहीं है, लेकिन अब हम बिजनेसमैन बन रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना पड़ेगा। सो नाउ एट लास्ट आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट अभी के लिए भी, और आपको जानना भी चाहिए कि बिजनेस यहाँ पे किस तरह से ओपन होता है, क्या उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं, क्या उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा और आप सीधे ही बिजनेस में आ जाएंगे तो भी आपको पता नहीं है। सेकेंडली फ्रेंड्स, अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में जाना है तो पार्टनर को सोच समझ के हमें रखना होता है, देखना होता है कि वो पार्टनर अपने लायक है कि नहीं है, हमारी उसके संग कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि यू नो पार्टनर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, सो दैट इज ऑल्सो देयर। और अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस ओनर है तो फिर तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 100% प्रॉफिट इज योर्स, 100% लॉस इज योर्स। जो स्पॉन्सर है उसको तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फीस जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जैसे कि मैंने बताया, तो हर चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आपका और आपके स्पॉन्सर का भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो उस बेस पर आप यू नो अमाउंट सेट करेंगे अपने उनके साथ, स्पॉन्सर के साथ, तो उससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से उनको लेना देना कुछ नहीं होगा। सो दिस इज अनदर थिंग। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो, and along with the video I gave you a wonderful view today in this video. Okay, you can see
this live swimming pool video, this view here. So friends, please subscribe to my channel, like to my channel, share and recommend my channel to your friends. अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, देती हूँ और मैंने दी है इन माई पास वीडियोस, और जो लोग नए हैं मेरे वीडियो चैनल पे वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल फार्मा एंड जॉब्स इन दुबई को क्लिक करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसमें जो बेल आइकन बना होता है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए एज सून एज आई अपलोड माई न्यू वीडियोस। और बाकी मेरी वीडियो चैनल पे अगर आप क्लिक करेंगे फार्मा एंड जॉब्स इन दुबई को क्लिक करते हैं तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मेरा चैनल ओपन होने के बाद उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी बाकी की वीडियोस मैंने उसमें जो अपलोड की हैं रिलेटेड टू ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग फार्मेसी की, आप यहाँ पे फार्मासिस्ट की जॉब कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, लाइसेंसिंग क्या प्रोसीजर्स हैं, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। तो आपको मुझसे अलग से कमेंट में पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हाउ कैन आई अप्लाई फॉर माई फार्मासिस्ट एग्जाम और व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर दिस और ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज मैंने सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं। और आप वो चीज़ वहाँ पे जाके वीडियोस वॉच कीजिए, वीडियोस देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा एंड ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। So guys, thanks for watching my video. Have a good day ahead and stay tuned to my channel for the next upcoming video. So thanks a lot. Thanks for watching the video.